جنوبی پنجاب کے متعدد علاقوں میں بارش ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، لیا، خانیوال، مظفر گڑھ میں بادل خوب برسے۔ بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بارش کے باعث متعدد علاقے زیر آب، شاہراہوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ متعدد علاقوں میں گھروں میں پانی داخل، خواتین پریشان۔ بارش کے بعد ریجن بھر میں متعدد فیڈرز ٹرپ کر جانے سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے جنوبی پنجاب کے متعدد علاقوں میں بارش ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، لیا، خانیوال، مظفر گڑھ میں بادل خوب برسے، جبکہ بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ بارش کے باعث متعدد علاقے بھی زیر آب آ گئے ہیں۔ ملتان میں بارش نے پھر سے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ اہم شاہراہوں پر 1 فٹ تک پانی جمع ہو گیا ہے۔ ملتان میں ابر رحمت شہریوں کے لیے زحمت بن گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 60 ملی میٹر بارش ہوئی، جس کے بعد تمام اہم شاہراہوں پر پانی جمع ہو گیا۔ سڑکوں پر جمع پانی سے کئی گاڑیاں بند ہو گئیں، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد پانی کا جمع ہونا انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ لوگ بہت پریشان ہیں اور مقامی انتظامیہ سوئی پڑی ہے۔ میونسپل کمیٹی والے جو لوگ ہیں، بلدیہ کے لوگ ہیں، وہ سوئے پڑے ہیں اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر طارق روڈ سمیت شہر کے تمام شاہراہوں پر سیوریج کا مناسب نظام بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ اقبال صادق، ملتان۔ آپ کو بتائیں ملتان میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اربن فلڈ کی پیشگی اطلاع کے باوجود بارش کے بعد ملتان کے اکثر علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ میلوں فاصلے تک پانی ہی پانی ہے۔ ملتان کے نوابپور روڈ پر بھی ایسا ہی نظارہ ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملتان کو جنوبی پنجاب کا دل بھی کہا جاتا ہے اور یہ شہر اپنی مثال آپ ہے، لیکن پیر اور منگل کی درمیانی شب ہونے والی بارش نے شہر میں ہر طرف پانی ہی پانی کر دیا۔ تنگ ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ دیکھو، وزن بھی اٹھایا جا رہا۔ متعلقہ اداروں کی پیشگی بارشوں کی اطلاع کے باوجود ملتان میں بارش کے بعد ایسا لگا جیسے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی گئی۔ ملتانیوں کو بارش اور اس کے پانی کے ساتھ چھوڑ دیا گیا ہے۔ کافی عرصے جب بارش آتی ہے یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں آتا یہاں پہ۔ اتنا ہی نہیں، ملتان کے نوابپور روڈ پر انتظامیہ نے گٹروں کے ڈھکن تک تبدیل نہیں کیے، جس کی وجہ سے حادثات کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ ملتان میں آنے والے دنوں میں بھی مزید بارشوں کی پیشگی اطلاع ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس تھوڑی سی بارش سے جو مسائل سامنے آئے ہیں انہیں واسطہ یا متعلقہ اداروں کی جانب سے بہتر انداز میں درست کر لیا جائے گا یا نہیں۔ کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ محسن الملک، ملتان۔ ملتان شہر میں ہونے والی بارش کے باعث سڑکوں اور گلی محلوں میں بارش کا پانی جمع۔ بارش کے پانی کی وجہ سے اہل علاقہ کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہی ہیں سہیرا طارق۔ جی سہیرا، بتائیے گا کہ گلی محلوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے؟ سہیرا سے رابطہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں ملتان شہر میں ہونے والی بارش کے باعث سڑکوں اور گلی محلوں میں پانی جمع ہو گیا۔ بارش کے پانی کی وجہ سے اہل علاقوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان شہر میں ہونے والی بارش کے باعث سڑکوں اور گلی محلوں میں پانی جمع ہے۔ بارش کے پانی کی وجہ سے اہل علاقہ کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ شہر میں ہونے والی بارش کے باعث سڑکوں اور گلی محلوں میں پانی جمع ہو گیا۔ بارش کے پانی کی وجہ سے اہل علاقوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ روحی سہیرا طارق نے۔ جی سہیرا، بتائیے گا، پانی جمع ہے، لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے؟ جی بالکل، گزشتہ رات ہونے والی بارش کے بعد ملتان کے جو سڑکیں اور گلیاں محلے ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ بارش کی وجہ سے گرمی کا زور تو ٹوٹ گیا ہے، لیکن پانی کے مسائل جو ہیں وہ جوں کہ توں ہی برقرار ہیں۔ اس وقت میں ایم ڈی اے روڈ پر موجود ہوں اور اس سے ملحقہ جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پر گہرا پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور صبح سے اب تک پانی نہیں نکالا جا سکا ہے۔ اہل علاقہ کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے یہاں سے گزرنے میں۔ مجھے بتائیے گا کہ بارش کا پانی ابھی تک نہیں نکالا جا سکا؟ ہاں، لیکن ایک رات کی بارش نے واسا ملتان کی کان کی کارکردگی کا پول کھول کے رکھ دیا ہے۔ اس وقت پورا شہر جو وہ گندے جوہر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ لوگوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، بچے ہیں، خواتین ہیں، مسافر ہیں، گردنوا کے جو تاجر لوگ ہیں وہ بھی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور ہمیں ملتان میں کسی جگہ پر بھی واسا کے اہلکار نظر نہیں آ رہے جو اس نکاسی آپ کے لیے کام کر رہے ہوں، جبکہ دعوے بڑے بڑے ہوتے ہیں، جی ہم ملتان کو پیرس بنا دیں گے، ہم ملتان کو یہ کر دیں۔ ایک رات کی بارش نے واسا کی رام کہانی کا پول کھول دیا۔ آپ پیچھے ٹریفک بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے جو ہے تالاب
की सूरत हाल है। बिल्कुल ही यहाँ से पैदल तो कोई गुजरने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। जो बाइक्स वाले, रिक्शे वाले और गाड़ियों वाले हैं उनको भी खासी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। वासा की टीम्स अभी तक यहाँ नहीं पहुँच सकी हैं निकासी के। आपके लिए बताइएगा कितनी मुश्किल हो रही है? जी मुश्किल तो बहुत ज़्यादा का उसका सामना हमें करना पड़ रहा है। मैं अभी जो है ना वो चौक कुमारान की साइड से यहाँ पे आ रहा हूँ। बतौर एक आम शहरी में यानी कि ना हुकाम की तवज्जो सिर्फ दिलाना चाहता हूँ कि पूरा चौक कुमाराना से लेके ना यहाँ तक ये MDA चौक तक बिल्कुल यानी कि पानी की बहुत ही बुरी सूरत हाल है और आम पब्लिक का यानी कि ना वहाँ से गुजरना मुहाल हो रहा है। और वहाँ पे अगर अरबाब इख्तियार जाके देखें ना तो वहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक का जो मंजर है ना आपको देख के यानी कि ना आप लगेगा कि पता नहीं ये हम लोग कहाँ आ गए हैं। देखकर ऐसा ही लग रहा है कि मानसून बारिशों के तहत यहाँ पर इंतजामिया अब्रिद अहमद जहमत बन गया है और MDA रोड तालाब का मंजर पेश कर रहा है। सुहरा तारिक आप हमें तफसीलात बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं शहर औलिया में रात जारी रहने वाली रिमझिम के बाद समीजाबाद कॉलोनी नदी नाले का मंजर पेश करने लगी है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं वसीम शहजाद। में नजर आने वाली जो शाहराह है ये न्यू समीदाबाद कॉलोनी है, लेकिन देखने में ये इटली का शहर वेनिस जो है वो लग रहा है, जहाँ पर जो गलियां हैं वो गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाइस नदी नालों का मंजर जो है वो पेश कर रही है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी ये बारिश के बाद यहाँ पे मसला बहुत ख़राब है, आने जाने का रास्ता बंद है। यहाँ की आवाम बहुत तंग हो रही है, नमाजी हज़रात तंग हो रहे हैं, आने जाने वाले बच्चे तंग हो रहे हैं जो कि अपने घरों में भी नहीं जा सकते और ना ही आ सकते हैं क्योंकि ये पानी खड़ा है। और ये वासा इंतज़ामिया के लिए है कि वासा इंतज़ामिया आए और इसे सही करवाए ताकि आम आवाम और शहरी को कोई सहूलत मुयसर हो। और सड़कें भी बिल्कुल टूट चुकी हैं इस पानी के खड़े होने की वजह से, चूँकि इस कॉलोनी की पहले ही पाइप लाइन जो लाइन डली हुई है वासा लाइन वो बंद है और इसको खोलने के लिए कोई अभी तक वासा वाला नहीं आ रहा, जबकि कंप्लेनें भी बारहा करवाई हैं। जी बिल्कुल, बारहा कंप्लेन कराने के बावजूद गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद, आपने अपडेट किया। इस हवाले से बहावलपुर में मुनासिब निकासी सिस्टम न होने के बाद रेलवे अंडरपास में पानी भर गया है। बहावलपुर से अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब से। बिल्कुल, बारिश की दुआएं बहावलपुर वाले बहुत करते हैं, लेकिन बारिश कुछ टाइम तक तो रहमत रहती है लेकिन उसके बाद जहमत बन जाती है और यही सूरत हाल हमें यहाँ पर नजर आती है। जो रेलवे क्रॉसिंग का जो अंडरपास है वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो अंडरपास है पानी से भरपूर भर चुका है और यहाँ से तमाम लोग जिन्होंने रेलवे स्टेशन से, वेलकम चौक से या दूसरे इलाकों से कायद-ए-आज़म कॉलोनी या लबाना चौक की जानब जाना होता है, इंडस्ट्रियल स्टेट की जानब जाना होता है, उन तमाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उनकी जो गाड़ियां हैं यहाँ पर शदीद पानी के अंदर बंद भी हो जाती हैं। इससे कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? सर मुश्किलात आपके सामने है कि जब एक तो गर्मी हब्स की वजह से हम लोगों ने दुआएं मांगी अल्लाह ताला से कि या अल्लाह रहमत बरसा। अल्लाह ताला ने जब रहमत बरसाई तो वो हमारे लिए, हमारे हुक्मरानों की वजह से जहमत बन जाती है। ये आपके सामने है कि ये देखें, अब हम कायद-ए-आज़म चौक या लबाना चौक या हमने GT रोड पे निकलना हो तो उसके लिए हमें क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये आप खुद देख रहे हैं। आप जी बिल्कुल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोई शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई ये बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? आपने अपनी बाइक रोक दी, आगे क्यों नहीं गए? सर आगे इसलिए नहीं गए, खुदा ना खास्ता पेंटर रोक गया तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। हम बहुत दूर से आए लेकिन पानी देख के हम रुक चुके हैं, आगे जाने को दिल नहीं कर रहा। आगे जाने को दिल नहीं कर रहा। सर आपका क्या कहना है इस हवाले से, जरा कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको, जरा बताइएगा। सर आपके सामने ही क्या हालत है, अब रुके हुए हैं यहाँ पे, पानी निकालने निकासी का कोई निज़ाम ही नहीं है बिल्कुल ही। पानी के यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े शहरियों के खराब होते हैं, सवारी जो है वो खराब हो जाती है, उसके अंदर पानी अंडरपास में पानी भर गया है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ब्यूरो चीफ तैयब साहब आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे बहावल नगर का, जहां पर नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है, वहां से हमें अपडेट कर रहे हैं, तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रूही कासिम अली शेख। रात से होने वाली बारिश से मौसम तो जरूर खुशगवार हो गया और शहरी इंतहाई खुश हैं बारिश से, क्योंकि मुसलसल एक माह से जो है बहावल नगर का टेम्परेचर 42 से 46 सेंटीग्रेड के दरमियान था, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशान थे। और गुज़िश्ता रात जो बारिश हुई इसकी वजह से मौसम जो है वो खुशगवार हो गया, गर्मी की शिद्दत जो वो कम हो गया, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खुश हैं, उनके चेहरे जो खिल उठे हैं। लेकिन जो बारिश का पानी जो सीवरेज बंद होने से, डिस्पोजल ना चलने की वजह से जगह जगह खड़ा है, जिसकी वजह से शहरी जो है उनको आमतौर वक्त में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं सिर्फ मौजूद हूँ सर्कुलर रोड बहावल नगर पर और यहाँ पर कुछ शहरी उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, पानी खड़ा, मौसम तो खुशगवार हो गया, क्या कहते हैं? मौसम बहुत खुशगवार हो गया है, बहुत परेशानी भी थी, 10 दिन हो गया, बहुत गर्मी शदीद से थी, पर अब बहुत मौसम है। पर म्यूनसिपल चाहिए बल्दिया को भी पानी के आमदोरफ्त में बहुत ज़्यादा बुजुर्गों को जो नमाजी हैं
उनके लिए पानी के छिट्टे की वजह से उनको गुजरने की मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको चाहिए कि जल्द से जल्द इनका बेहतरीन हल निकाले। ये एक और शहरी, इनसे भी बात करते हैं। बारिश जो है वो हो गई है, मजीद होने जा रही है, पानी पहले ही खड़ा, क्या कहते हैं? पानी इधर बहुत खड़ा जी, इधर सड़कों भरी पड़ी है, इधर कोई सफाई के लिए नहीं आ रही, इधर गंद भी बहुत हुआ पड़ा, टेम्परेचर बहुत था जी, इधर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इधर बहुत हालात ख़राब हो रहे थे, इधर बंदे भी ऐसे बहुत हो रहे थे। अब टेम्परेचर अच्छा खुशगवार हो गया, म्यूनसिपल कमेटी को चाहिए कि इधर सफाई जल्द से जल्द करे। जी बिल्कुल, ये थे शहरी जिनका कहना है कि मौसम बारिश के बाद पानी जमा है। बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दुनियापुर में बारिश के बाद क्या सूरत हाल है, जानते हैं याकूब ताहिर से। याकूब बताएगा। मैं इस वक्त दुनियापुर पे दाखिली और खारजे दरवाज़ों के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ से जो है बाहर से लोग आते हैं दुनियापुर में इंटर होने के लिए, यही रास्ता जो है इस्तेमाल करते हैं, और जिन्होंने बाहर जाना होता है वो भी यहीं इन्हीं रास्तों से गुजरकर बाहर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बारिशों के दिनों पे ख़ास तौर पे बात बताता चलूँ कि बारिशों के दिनों में यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी की इंतहाई नाअहली और गफलत की वजह से इसी तरह से पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से कि लोगों को यहाँ से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाल ही गुज़िश्ता साल जब ये 2 रवैया सड़क बनी थी, उस वक्त जो है म्यूनसिपल कमेटी के इंजीनियर की गलती की वजह से जो साइडें के ऊपर मेन होल सीवरेज के लिए बनाए गए हैं, उनके मुनासिब तरीके से रोड के निकासी आब के पानी के लिए कनेक्शन ना दिए गए, जिसकी वजह से कि ये सूरत हाल यहाँ पर पैदा होती है। और जिस वक्त भी यहाँ पर बारिशें आती हैं, इसी तरह 2-2, 3-3 या फुट जो है पानी यहाँ पर जमा हो जाता है, और यहाँ से लोगों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों ने आला हकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर यहाँ पर जो साइडों पे मेन होल हैं, जो सीवरेज के लिए यहाँ पर गटर लाइनें बनाई गई हैं, उनमें जो है। बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर, आपने अपडेट किया। सदर तहरीक इंसाफ शेख वाजिद शौकत की लीगी हुकूमत पर तनकीदी वार, कहा कि बारिश बरसने से शहर के नशेबे इलाके डूब गए हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं जुनैद अनवर। जी बिल्कुल, मुल्तान के नशेबी इलाके जो है वो बारिश बर्दाश्त नहीं कर सके, और बेशतर नशेबी इलाके जो है डूब चुके हैं। तहरीक इंसाफ मुल्तान शहर के नायब सदर शेख वाजिद शौकत इस वक्त मुल्तान के नशेबी इलाकों का जायजा लेने मोटरसाइकिल पर निकले, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। शेख साहब, कैसी देखते हैं वासा की कारकर्दगी? पूरा शहर डूब चुका है, आप भी निकले हैं मोटरसाइकिल पर, ये पानी ही पानी है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में सबसे ज़्यादा सीवरेज पे काम हो रहा है। आज ये जो आप देख रहे हैं सीवरेज का जो पानी है, ये सिर्फ पिछली हुकूमतें अगर ये काम कर लेती तो आज शायद हमारी जो सड़कें बन चुकी हैं वो भी बच जाती। इस सीवरेज के पानी की वजह से सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं, और एमडी वासा साहब वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे इलाकों पर, और ये हालात आपके सामने हैं कि यहाँ पे सफाइयाँ गटरों की ना होने की वजह से सारा पानी का निज़ाम, बारिश की जो निकासी है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही। शेख साहब, कब तक पुरानी हुकूमतों पर ब्लेम देंगे? वासा किधर है? गलियां मोहल्ले डूब चुके हैं, आप अपनी कारकर्दगी की बात करें। देखें जुनैद, मैं ये आपको बताता चलूंगा कि ये जो निज़ाम चल रहा है ये पिछली सीवरेजेस है, और अब ये काम जारी है। 30 साल की जो कोताहियाँ हैं वो 3 साल में पूरी नहीं हो सकती। तो इंशाअल्लाह हम लोग बड़ी जाफशानी से इस मसले को जो है हम लड़ रहे हैं, इस इशू से, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये मामला ठीक होंगे। इस वक्त हम यूनियन काउंसिल 20 में घूम रहे हैं, तो ये सीवरेज का जो मसला है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 10 करोड़ रुपए से हम सीवरेज ठीक करा रहे हैं। तो वासा की कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं कि रात से अब तक बारिश और अभी तक जो पानी नहीं निकाला जा सका? बस ये नलायकी है वासा की। मेरी एमडी वासा से बात हुई है, अभी भी वो इसमें हम मीटिंग में है, मैं भी यहाँ से फ्री होकर वहीं जाऊँगा। तो इंशाअल्लाह मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब से मेरी बात हुई है इस हवाले से, तो बहुत जल्द ये मामला जो है वो बेहतर नशेबी इलाके डूब गए हैं। जुनैद अनवर, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, लोधरा गीलेवाल में बोसीदा मकान की छत गिर गई। छत गिरने से एक खानदान के 6 अफराद जख्मी हो गए। मलबे तले दबकर जख्मी होने वालों में मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। मकान की छत मूसलाधार बारिश की वजह से बोसीदा होकर गिरी है। लोधरा गीलेवाल में बोसीदा मकान की छत गिर गई है। छत गिरने से एक खानदान के 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। दूसरी जानिब बरसात के मौसम में अहमदपुर शरकिया में अफसोसनाक वाकया, तेज हवा और बारिश के बायस फैक्ट्री की दीवार गिर गई। दीवार के मलबे तले आकर एक मजदूर जाँ बहक हो गया है। रेस्क्यू टीम ने लाश को दीवार के नीचे से निकाल लिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए THQ रवाना कर दी गई। तो आपको बता रहे हैं, बरसात के मौसम में अहमदपुर शरकिया में अफसोसनाक वाकया, तेज हवा और बारिश के बायस फैक्ट्री की दीवार गिर गई है।
आपको बताएं फोर्ट अब्बास के नवाही गांव 285 HR के करीब हाकड़ा नहर में 3 से 4 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। मकामी काश्तकार अपनी मदद आपके तहत शगाफ को पुर करने में मसरूफ हैं। महकमा अनहार का अमला ताहाल मौके पर नहीं पहुंच सका। फोर्ट अब्बास के नवाही गांव 285 HR के करीब हाकड़ा नहर में 3 से 4 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। रहीमिया खान से खबर शामिल करेंगे। रहीमिया खान शहर और गिरदनवाह में सुबह सवेरे आसमान पर बादलों का बसेरा है, जबकि ठंडी ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। बिल्कुल, रहीमिया खान शहर और गिरदनवाह में सुबह सवेरे से आसमान पर बादलों का बसेरा है। आंख मचोली का एक सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, जिसके बाद रहीमिया खान का मौसम जो है सुहाना, मजेदार और दिल फरेब बन चुका है। लेकिन इसके साथ अगर बारिश की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीमिया खान शहर और गिरदनवाह में आइंदा 24 घंटों में बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। लेकिन रहीमिया खान में अब तक बारिश नहीं हो। रहीमिया खान के शहरियों को इंतजार है कि बारिश कब होगी। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो रहीमिया खान में इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया है वो 28, जबकि ज्यादा से ज्यादा 37 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये नवीद सुना दी गई है और शहरियों को इंतजार है कि कब बारिश होगी, क्योंकि बहुत से दिन हो चुके हैं रहीमिया खान के शहरियों ने जो है सुहाना, मजेदार मौसम, दिलफरेब मौसम जो है वो देखा ही नहीं है। और रहीमिया खान में गर्मी जो मौसम खुशगवार हो गया है। आमिर भट्टी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हालिया बारिश ने कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के जेर इंतजाम लगने वाली मवेशी मंडियों में इंतजामात का पोल खोल दिया। बाहर हर तरफ कीचड़ और दलदल, खरीदार परेशान हैं। मंडियों में पानी जमा होने से और दलदल बनने से मवेशियों के बीमार होने का भी इम्कान है। अपडेट करेंगे रजा मलिक। बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जहां कुर्बानी के लिए मवेशी खरीदने का जो सिलसिला जारी है, जहां बड़े मवेशी खरीदे जा रहे हैं और कुर्बानी के साथ थे उसमें बड़े थे, उसी तरह से लोगों में एक बड़ा जोश खरोश है कुर्बानी के लिए बकरे खरीदने का भी। और बकरों की कीमतों की भी अगर बात करें तो आसमानों से बात कर रही हैं। लेकिन बकरे भी जो है वो दाजल नस्ल के, लालपुरी नस्ल के, मोहम्मदपुर दीवान इलाका है, वहां से उन इलाकों से जो बकरे लगे हैं उनकी यहाँ अपनी एक कीमत है। लेकिन जो हुकूमती SOPs हैं जिस हवाले से ये दावे किए गए, वादे किए गए, क्योंकि ये कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के जेर इंतजाम ये बकर मंडी जो है वो चलाई जा रही है। यहाँ ना तो कहीं सैनिटाइजर नजर आ रहे हैं, ना कोई स्टॉल नजर आ रहा है और ना ही किसी किस्म की हुकूमती SOPs पर अमल दरामद के हवाले से कोई इकदाम है। खरीदार भी यहाँ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले जो व्यापारी, हाँ जी, कहाँ से माल लाए हैं आप और कितने दिन पहले यहाँ पहुंचे हैं? हम अलीपुर से माल लाए हैं, माल मोहम्मदपुर का है। हमको 10 दिन हो गए हैं, यहाँ ग्राहक नहीं है। हम 50,000 मांगते हैं, वो 25,000 कहकर चले जाते हैं। हम सारा साल इन पर मेहनत करते हैं, वो मेहनत का मोल भी नहीं लगाते हमें। अभी जो बारिश के बाद जो सूरत हाल है कि जो रास्ता नहीं है मंडी में, जो हाल बारिश हुई उसकी वजह से तमाम रास्ते जो हैं और जो हर तरफ कीचड़नुमा दलदल बनी हुई जिसकी वजह से मसाइल हैं। तो क्या इस बारिश की वजह से कोई गाहक आ रहा है कि गाहक या वैसे ही नहीं आ रहा गाहक? बारिश की वजह से आप मजीद गाहक नहीं आ रहा। बारिश की वजह से पानी बहुत ज्यादा खरा हुआ है, गाहक अंदर से नहीं आ रहा है, बाहर देकर चला जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ जो खरीदार हैं जिनको मैं समझता हूँ कि कामयाबी भी मिली है, उन्होंने खरीद लिया है। हाँ जी, ये कितने का खरीदा है आपने बकरा और कितना मोल तोल हुआ, मांगा क्या था और आपने कितने दिए? ये जी मैंने आज मैं बकरा लेने के लिए आया हूँ सुन्नत इब्राहिमी के लिए। तो यहाँ पे रेट्स बहुत ज़्यादा है, महंगाई इतनी हो गई है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। कि मैं पूरी मंडी घूमे हैं, देखा है कि जानवर हैं आए हुए हैं, लेकिन यह है कि गाहक बहुत कम है, बहुत ही कम है, यानी कि महंगाई की वजह से। अब ये देखें, ये मैंने बकरा लिया है, ये इसका 40,000 रुपया मांग रहा था। ना सैनिटाइजर है, ना मास्क लगाए जाते हैं, ना हाथ में दस्ताने हैं। बस इसकी वजह से, और सीवरेज का निजाम बारिश जो हुई है उसकी वजह से भी बहुत गंदगी है और रश भी जरा भी नहीं है। जी बिल्कुल, ये माशाल्लाह 12 साल का 13 साल जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से बहावलपुर में कायम होने वाली 5 आर्जी मवेशी मंडियों को हालिया बारिश और तेज हवाओं ने दरहम बरहम कर दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रोही मोहम्मद अमीन से। अमीन बताएगा। बिल्कुल, बहावलपुर शहर को ईद उल अजहा के हवाले से 5 सेल पॉइंट बनाए गए थे जहां पर मवेशियों ने आना था और यहां पर खरीदारों ने मवेशी खरीदकर अपनी कुर्बानी करनी थी।
लेकिन अभी बारिश के बाद मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो इंतजामात है वो तो बारिश और तेज हवाओं की नजर हो गए हैं, लेकिन इंतजामात यहाँ पर पूरे थे। जानवर और जो खरीदार है वो नहीं आए। सबल से शहर को 5 पॉइंट दिए गए, सेल पॉइंट दिए गए थे जहाँ पर जानवरों को आना था। आज चूंकि मंगल भी और सबसे बड़ी मंडी जो कंटोनमेंट की है वो भी आज लगी हुई है, तो इस वजह से भी शायद यहाँ पर जानवरों का रुझान नहीं बन रहा। तो बात करते हैं लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के डॉक्टर यासर मौजूद। अक्सर बताइएगा, हुकूमत की जानिब से इंतजाम तो पूरे किए गए थे, लेकिन क्या वजह है कि जानवर यहाँ पर नहीं आ रहे? जी बिल्कुल, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि जैसे कि एक ट्रेंड बन चुका है हमारा कंटोनमेंट वाली कैटल मार्केट का, लोग जब भी जानवर लेकर आते हैं तो उधर ही लेकर आते हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट में बहुत अच्छा स्टेप लिया है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। कोविड-19 की जैसे हमारे मुल्क में सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है, उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये मुख्तलिफ हमारी तहसील के अंदर 5 डिफरेंट टाइप के स्टेप बना दिए हैं। से फॉर एग्जांपल जो है जानवर ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, फ्लक्स ज़्यादा होता है, तो एटलीस्ट हमारे पास जानवर को मैनेज करने के लिए फार्मर्स जो लेकर आए हैं उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई जगह होनी चाहिए। इंतजामात पूरे हैं? जी बिल्कुल, इंतजामात पूरे हैं। आप देख सकते हैं, वहाँ कैमरा दिखा सकता है, हर तरह की जो है लाइफ स्टॉक का भी स्टॉल लगा हुआ है, इसी तरीके से मेडिकल कैंप भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के भी है, 1122 का भी एक स्टॉल लगा हुआ है, किसी भी तरह की जो सिचुएशन को डील करने के लिए। बाकी ये एक नेचुरल डिजास्टर इशू है जिसकी वजह से हमारा कैंप डैमेज हो चुका है। इसको इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल जो है गवर्नमेंट इसको मेंटेन करेगी। अगर हमारा जो जानवर का जो रेशियो है वहाँ पे बढ़ जाती है तो डेफिनेटली जो है ना जानवरों को मूव करके इधर लेके आएंगे और अपनी जो सिचुएशन है हम बेहतर करेंगे। बिल्कुल, ये एक जो तेज हवाओं के बाद इंतजामात दरहम बरहम हो गए हैं। मोहम्मद अमीन, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात बता रहे थे। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां तेज बारिश ने आरजी मवेशी मंडी को उखाड़ पिछाड़ कर रख दिया है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अदीम मुगल। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात से होने वाली तेज़ बारिश के बायस जहां शहर के दीगर इलाकों में पानी खड़ा हुआ है और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए हैं, वहीं आपको पता चले कि आरजी मवेशी मंडी में भी तेज़ हवाओं और शदीद बारिश के बायस जो है यहाँ पर लगाए गए टेंट जो हैं वो उखड़ गए हैं और बारिश के पानी के बायस जो है यहाँ पर मुश्किलात का जो है वो सामना है मवेशी के व्यापारियों को। तो मज़ीद इस पर हम जान लेते हैं, हमारे साथ यहाँ पर एक व्यापारी मौजूद हैं। जी बताइएगा कि गुज़िश्ता रात से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, इस वक्त भी एक हल्की बारिश हो रही है, आप लोगों के टेंट भी उखड़ गए हैं, तो क्या कहें? आंधी और बारिश से इधर आपके सामने जो हुआ है, सारे टेंट उखड़ गए हैं, हमारा सारा मवेशी माल कभी बारिश में है कभी उसमें है, यानी कि बहुत नुकसान हो रहा है हमें। सारे डंगरों का बुरा हाल हो चुका है, कभी रोड पे बांध रहे हैं तो रोड पे ट्रैफिक है, तो इसकी वजह से बड़ी परेशानी है हमें। तो यही है कि इंतजामिया यहाँ पे ना हेल है, कुछ भी नहीं कर रही वो। जी बिल्कुल, मुश्किलात का सामना है, बारिश के बायस जिला इंतजामिया की जानिब से इंतजाम किए गए थे, लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। विहाड़ी में 12 घंटे की बारिश के बाद सब्जी और फ्रूट मंडी की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। विहाड़ी से तफसीलात बताएंगे हाफिज सालिम मोहम्मद। इस वक्त हम मौजूद हैं विहाड़ी की सब्जी मंडी में, जहां बारिश के बाद की सूरत हाल इंतहाई अबतरनाक हो चुकी है। यहां से पैदल चलना भी मुहाल हो चुका है, जबकि यहां पे लाया गया मंडी के अंदर जितना भी सामान है वो इस वक्त जो है वो बारिश की नजर होकर खराब हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों का जो आज का रोजगार था वो इंतहाई जो है वो खत्म हो चुका है, जिससे जो मंडी के आड़ती है उनके लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। इस वक्त सब्जी मंडी के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी अब्बास। चौधरी साहब बताइएगा, क्या सूरत हाल है? बारिश का पानी यहाँ पे हर तरफ दिखाई दे रहा है, इसके इंतजाम क्यों नहीं किए गए? बिस्मिल्लाह, कबल 8 साल डीसीओ साहब ने ज़बरदस्ती मंडियाँ शिफ्ट की है और हमसे वादे किए थे सीवरेज रोड जो भी सहूलियत है हम आपको फराहम करके देंगे। 8 साल गुजरने के बावजूद आप सब्जी मंडी की हालत देख रहे हैं। मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ये मंडी है और एक बारिश होने के बाद ये कोई नदी नाले का मंजर पेश करती है और एक साल का हम 20 लाख टैक्स देते हैं, 30 लाख का ये साइकिल स्टैंड का ठेका होता है और भी मद में हमसे ये पैसे लेते हैं और वही पैसे हम पे ये लगाते जाए तो सब्जी मंडी दिन ब दिन आगे चली जाएगी। जो मेन आड़ती थे जिनका नाम था पूरे पाकिस्तान में, वो अपनी आड़तें सेल करके यहाँ मंडी से चले गए हैं। इतना नुकसान हुआ है इधर आड़तियों को, क्योंकि गरीब आवाम के लिए जो रेडी लगाता है फट्टे लगाता है वो इनका ये रोजगार है डेली का। और हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब और वज़ीर-ए-आला पाकिस्तान से ये अपील है। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब और वज़ीर-ए-आला पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। हाफिज सालिम मोहम्मद, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, मियावाली यूटिलिटी स्टोर पिपला पर गुज़िश्ता 1 माह से आटा और चीनी गायब है। यूटिलिटी स्टोर पर दूर दराज से शहरी खाली हाथ वापस जाने लगे हैं। अपडेट करेंगे अख्तर बजाज। आवाम को हर सतह पर
सहूलियात फराम करने के दावे करने वाली हुकूमत जो है उसकी सूरत हाल ये है कि मुतअद्दद जो है मियाँ वाली के यूटिलिटी स्टोर वहाँ पे आटा और चीनी दस्तयाब नहीं है। यहाँ पे शहरी चीनी और आटा खरीदने के लिए आते हैं लेकिन खाली हाथ वापस जाते हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। चीनी खरीदने के लिए आए हैं, क्या कहते हैं? सर ना चीनी है ना आटा है, जो ज़रूरियात की चीज़ है वो मिल नहीं रही है। गरीब आदमी कहाँ जाए, मजदूर आदमी क्या करेगा? कुछ तो सहूलत मिलनी चाहिए ना, इसके बगैर तो काम नहीं चलता। हर आदमी दुकान से चक्कियों से आटा किस तरह खरीदे? सर प्लीज मेहरबानी कोई रहम करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि न चीनी है न आटा है, क्या कहेंगे? आप क्या खरीदने के लिए आए हुए हैं? मैं चीनी और आटा खरीदने के लिए आया हूँ। 3-4 दिन हो गए रोजाना आता हूँ लेकिन मिलता नहीं है। फिर फायदा क्या यूटिलिटी स्टोर दस्तयाब करने के लिए अगर ये सामान ये नहीं है तो मैं दूर से गाँव से आता हूँ, 2-3 दिन हो गए आ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। ये अपील है हमारी गवर्नमेंट से कि ये अगर बनाया है तो फिर यहाँ ये शे भी महदूद की जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ये दूर दराज के इलाका जात से आए हुए शहरी जो हैं खाली हाथ शहरियों को चीजें नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आप तफसीलात बता रहे थे। अब आपको बताएं डेरा गाजी खान में ऑल पाकिस्तान वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन का एक्सियन के नारवा रवैये के खिलाफ एक्सियन मैपको दफ्तर के बाहर एहतजाज। अपडेट करेंगे आशिर इशफाक। खान में ऑल पाकिस्तान वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन की जानिब से मैपको दफ्तर में एक्सियन दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जा रहा है और यहाँ पर इन्होंने एहतजाजी धरना दिया हुआ है। इनका क्या मुतालबा है मजीद इनसे हम बात कर लेते हैं। सर बताइएगा क्या आपके मुतालबात हैं, किस वजह से एहतजाज ये हैं? हमारे रीजी खान रीजन पूरा रीजन दे डीजी खान पूरे सर्कल का रिजल्ट 1 नंबर बेहतरीन रिजल्ट है। सीओ साहब ने मुबारकबाद आखे, एससी साहब ने मुबारकबाद आखे, एक्सियन साहब ने नाजायज शौकात नाजायज सजाया और ही दौरान दितन वो सदाया और उनके बाद करप्शन का घर बनाया हुआ है। जेड़ा बंदा पैसे ना देवे उनका दूसरे दिन ट्रांसफर है। जेड़ा बंदा इनके घर जाती जेरे बिना दे बंदे रखे हुए हैं जो कि खासकर कौमियत नाल अगर किसी सुलंगी की बिजली चोरी पकड़ी गई है, जेरे लाइनमैन पकड़ी है उन लाइनमैन का उतो ट्रांसफर थे आ गए, उन लाइन सुपरिटेंडेंट का उतो ट्रांसफर थे आ गए। जब तक ये एक्सियन सुलंगी को तकरीबन 2 साल थी वाला लैन इको रिप्लेस तब्दील न करे सन, इतना अच्छा और अजीम इंसान ना गिना सन, वो तक ये डिवीजन दफ्तर बंद रहा सी। सारी लेबर ई एक्सियन नाल काम करने वास्ते कोई तैयार को नहीं। पाकिस्तान वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंटर लेबर यूनियन दे जितने मजदूर हैं इंशाअल्लाह आज तो यह है कि डीजी खान सर डिवीजन बंद है। अन करीब अगर ई एक्सियन को ई माफिया को ई करप्शन करने वाले अफसर को तब्दील न किया वैसी उस वक्त तक सारी जंग जारी रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आशिर इशफाक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। नाकिस खुराक फरोख करने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी के रेडार पर डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मक्सी की जेर निगरानी जूस कंपनी, सोडा वाटर, करियाना स्टोर और दीगर फूड प्वाइंट की चेकिंग की गई। मुल्तान डिवीजन और दीगर अजला में कार्रवाइयां 11 फूड प्वाइंट सरबमोहर कर दिए गए। 6,600 लीटर प्लफ मैंगो, 4,200 लीटर मैंगो ड्रिंक, 480 लीटर एक्सपायर्ड ऑयल, 994 लीटर सोडा वाटर, 500 किलो घी, 200 किलो आटा, 150 किलो बूंदी और 100 किलो मैदा बरामद कर लिया गया। मुल्तान नवाज फ्रूट, सैफ जूस कंपनी, ऐश मोहम्मद डेयरी, आसिया फूड, किसान मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सरबमोहर। लोधरा में सद्दीक सोडा वाटर, विहाड़ी में सवेरा सोडा वाटर मशहूर ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने पर सील। खानेवाल में इजाज बूंदी यूनिट, माशाल्लाह और मलिक जहूर अहमद करियाना स्टोर सील कर दिए गए। आपको बताएं बहावलपुर में पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ मुतहरिक, सफाई के नाकिस इंतजाम और एक्सपायर अशिया इस्तेमाल करने पर 3 फूड प्वाइंट सील कर दिए गए, जबकि दीगर को भारी जुर्माने करके वार्निंग भी जारी कर दी गई। 484 लीटर नाकिस ऑयल, 60 किलो मिठाई, 40 किलो बेकरी आइटम, 30 लीटर मिलावटी दूध, 75 किलो दही बरामद। सराय की चौक पर वाक़ दाता रेस्टोरेंट, दाता मिल्क सेंटर, न्यू रशीद कबाना फैमिली रेस्टोरेंट प्रोडक्शन एरिया सरबमोहर कर दिया गया। जबकि लेम्टा फूड प्रोडक्ट बमुकाम गनी गोट रोड कराची निमको पर 10,000 रुपए जुर्माने आयद। बहावल नगर का अकबर जाहिद स्वीट्स प्रोडक्शन एरिया, रहीमिया खान में रॉयल बेकर्स प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिया गया। जबकि दूसरी जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी की डीजी खान डिवीजन में कार्रवाई 2000 लीटर दूध तल्फ, 1723 लीटर जूस, 30 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्च, 20 किलो खोया और 20 किलो केमिकल बरामद कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ में अलकादिर होटल, डीजी खान में गुलाम असगर करियाना स्टोर, मरहबा करियाना स्टोर, शबीर स्वीट्स यूनिट और लैया में मिलावटी मिर्चों की फरोख्त पर
एम हनीफ करियाना स्टोर सरबमोहर। राजनपुर में दीदार ट्रेडर्स मैंगो ड्रिंक प्रोडक्शन यूनिट, खान एंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर सरबमोहर। लैया में सईद अहमद खोया प्रोडक्शन यूनिट। कोटद्दू में दूध बरदार गाड़ी और मौजूद उसमें 2000 लीटर दूध की चेकिंग। पानी की मिलावट पाए जाने पर दूध तल्फ कर दिया गया। अजवा रेस्टोरेंट को आलूदा फ्रीजर्स में खुराक स्टोर करने, खुला सीवरेज सिस्टम होने पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। बहावलपुर पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाइयों के दौरान शफीक और फैसल नामी मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 5 किलो के करीब चर्स बरामद कर ली गई है। मनशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो आपको बता रहे हैं, इस हवाले से बहावलपुर पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कार्रवाइयों के दौरान शफीक और फैसल नामी मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वबाई अमराज के कंट्रोल के लिए कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर का अहम इकदाम। कोरोना वायरस समेत दीगर वबाई अमराज के कंट्रोल के लिए कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर ने पंजाब हुकूमत से 65 बेड पर मुश्तमिल इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल यूनिट के कयाम की दरख्वास्त कर दी है। आपको बता रहे हैं, वबाई अमराज के कंट्रोल के लिए कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर का अहम कदम सामने आया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अथल आशारी। हमारे समेत दीगर जो वबाई अमराज हैं उनके कंट्रोल और इलाज के हवाले से कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में एक अहम कदम जो है वो उठाया गया है और एक नए यूनिट की जो है वो बात की गई है कि एक नया यूनिट जो है वो यहाँ पर कायम हो। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं तर्जुमान कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर डॉक्टर तलहा चीमा साहब। सर फरमाइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बहुत शुक्रिया शारी साहब। गुजारिश ये है कि हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। अभी आपने भी देखा होगा कि एमरजेंसी के अंदर एक पेशेंट रिपोर्ट होता था, वो फिर फ्लू क्लिनिक जाता था, वहाँ से फिर वो फिल्टर आउट होकर फिर सिविल हॉस्पिटल जाता था, जिसकी वजह से किसी भी वबाई मर्ज के लाइक कोविड जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उसके फैलने का अंदेशा मजीद बढ़ जाता था। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, हमारा वो 410 बिस्तरों पे मुश्तमिल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, उसके जितने बेड्स हमने कोविड के लिए दिए हुए हैं वो अबाउट 110 के करीब हैं जो इस वक्त यूज़ में आ रहे हैं। बाकी 300 बेड्स जो हैं दे आर वेकेंट और वहाँ पे हमारे तमाम शोबाजात जो हैं वो एस्टेब्लिश्ड हैं, लाइक रेडियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, सर्जरी, उन तमाम के तमाम का काम जो है वो बंद है पिछले 4-5 महीने से। अब गुजारिश ये है कि जब हमारे अपने अवाम जो हैं, हमारे मरीज़ जो हैं, वो जब वहाँ पे जाते हैं तो उनको वो सहूलत नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो फिर यहाँ पे ओवरबर्डन हो रहा है BVH। तो इसके ऊपर एक इंतहाई अहम कदम जो है वो प्रिंसिपल साहब ने सोचा और इसको हमने भी फिर आगे इस पर अमली जमा पहनाने की कोशिश की है उनकी गाइडेंस के अंडर, कि हमने एक 60 बेडेड का एक सेपरेट जो है वो इन्फेक्शियस कंट्रोल डिजीज यूनिट जो है ना वो मांगा है गवर्नमेंट से, विद द फैसिलिटी ऑफ टेलीमेडिसिन, कि उसके अंदर वो टेलीमेडिसिन की भी फैसिलिटी देंगे। और उसके ऊपर हम बाकायदा जो है उसका कंसेप्ट फॉर्म, कंसेप्ट पेपर बना के उसका एक तखमीना लगा के, ये नहीं कि सिर्फ हमने एक लेटर लिखा है, हमने एक बाकायदा उसका तखमीना लगा के कंसेप्ट पेपर पूरा एक जो PND का होता है वो बना के हमने जो है वो गवर्नमेंट को अरसाल किया, ताकि हमें जो है इस ADP के अंदर अगर प्रोविजन मिल जाए दैट विल बी मच हेल्प हमारे जो है बहावलपुर के रेजिडेंट्स के लिए। बिल्कुल ऐसे जी, बहावलपुर के रेजिडेंट्स के लिए, मरीजों के लिए इस इक़दाम से वबाई अमराज के कंट्रोल में आसानी होगी। अथला आशारी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, बहावलपुर में चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर चौधरी जावेद इकबाल और सीनियर नायब रहनुमा चेंबर ऑफ कॉमर्स मुबशिर जावेद ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के दोनों सीनियर रहनुमाओं ने डिप्टी कमिश्नर से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मसाइल हल करने पर गुफ्तगू की है। इससे पर मजीद तफसीलात बताएंगे महमूद जहीर। महमूद बताएगा। मैं मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, जहां पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक वफद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मसाइल के हवाले से डिप्टी कमिश्नर साहब को अभी मिले हैं। तो सदर है हमारे साथ चौधरी जावेद इकबाल साहब। सर, आपने वो खबर कल हमें दी भी थी, हमारे चैनल पे चलती भी रही है कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के कुछ लोगों को कोटा नहीं दिया गया, बाकी सब लोगों को मिल रहा है। उसके लिए आपने कहा कि हम सबके साथ चलेंगे और इनका भी कोटा मंजूर करवा कर देंगे। तो क्या आज बना, आपकी मीटिंग हुई डिप्टी कमिश्नर? जी जी, बहुत मेहरबानी। आज हम आए हैं DC साहब के पास, जो हमारे इश्यूज थे वो हमने इनके साथ डिस्कस किए हैं। उन्होंने कमाल मेहरबानी करते हुए, चूंकि हमारे ये जेन्युइन इशू थे, सिर्फ 6 मिलें ऐसी थी जिनको कोटा नहीं मिला और 31 को कोटा मिल चुका था। उन्होंने केस देखा, चूंकि हमारा केस जेन्युइन था, उन्होंने फौरी तौर पे आर्डर कर दिए हैं तमाम मिलों को बहावलपुर की कोटा मिलेगा और बहावलपुर में आटे की जो सप्लाई का इशू है वो बिल्कुल नहीं होगा और इंशाल्लाह गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा निर्खों पर आटा वाफर मकदार में बहावलपुर में अवेलेबल होगा। तो तारिक बशीर
चीमा साहब के राइट हैंड हैं मुबशर जावेद साहब, मोहर इधर से इधर हिलाते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बड़े सीनियर लीडर हैं। आप आज बड़े अरसे बाद नजर आए मुबशर साहब, एक तो आपका शुक्रिया, आप हमें टाइम दे रहे हैं। दूसरा, तारिक बशीर चीमा साहब हों, आप हों, जावेद इकबाल साहब हो, आप लोगों की एक ही कोशिश होती है कि जो आम मसाइल हैं, ताजरों के हों, इंडस्ट्री के लोगों के हों, वो हल हों। तो इसके लिए क्या इज़हार ख्याल कर रहे हैं? भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम तारिक बशीर चीमा साहब की क़यादत में हमेशा चीमा साहब की इंस्ट्रक्शन पे हमने तमाम ताजरों के छोटे बड़े ताजर मसाइल हल किए हैं। आज भी हम इस सिलसिले में यहाँ पे आए थे, पिछले 5-6 दिन से वर्किंग चल रही थी, तो बीडी साहब ने मेहरबानी की है, हम उनके जाकर मिले हैं। खैर उनको हमारा सैल्यूट है कि उन्होंने हमसे कोई बात किए बगैर फौरी हमारा कोटा उन्होंने अलाट कर दिया है। तो बाकी हम मशहूर डी साहब के भी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के भी, आप मीडिया वालों के भी, कि आप लोग हमारे साथ छाना बछाना खड़े होते हैं। ये बेचारे सारे हमारे दोस्त परेशान थे, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, डी साहब ने मेहरबानी की, हमारा काम आज हो गया। अच्छा, कोरोना की मसरूफियात के बावजूद आप लोगों ने चैम्बर की एक्टिविटीज़ को भी जारी रखा और चैम्बर के मसाइल के और खासतौर पर ताजरों के मसाइल के लिए कोशां भी है। तो ये क्या खास इंस्ट्रक्शन है आपको तारिक बशीर चीमा साहब से, या आप खुद ये विलिंगली कर? सर ये चीमा साहब का स्टाइल है और चीमा साहब हमारे लीडर हैं। उनकी जो इंस्ट्रक्शन हो, बेशक ना, उनका विजन यही है कि खिदमत करनी है आवाम की। वो खिदमत हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। बेशक कोरोना भी था, लेकिन मीडिया पे नहीं आए हैं, लेकिन अंदर खाने जो हमारी मीटिंग चाहिए थी, लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, भावलपुर, मुल्तान, हम ऑलरेडी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस दफा भी पूरी खिदमत की है और खिदमत का रिजल्ट हमें चैम्बर के इलेक्शन में मिलेगा। और इसके साथ साथ को मैं और बात भी बता दूं, इस दफा हम पीसीजे के अंदर भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कॉटन इंजीनियर एसोसिएशन में भी अपना पूरा रोल अदा करेंगे। और जैसे कि पहले भी हमने चीमा साहब की क़यादत में 5% सेल टैक्स का इशू था, तकरीबन 6.5-7 अरब सालाना बनता है, जो कि जिन हज़रात पे लगाया गया था। उसका मामला चीमा साहब ने बड़े बेहतरीन तरीके के साथ असेंबली से उसको फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट करवाई है, और वो जो पिछले सालों का टैक्स है, जो फ्यूचर का टैक्स है, वो सारा खत्म हो गया। इंशाअल्लाह ताला हम पीसीजे के मामले भी हम इलेक्शन के हवाले से तब ठीक ठाक आपको नजर आएगा कि वर्किंग कुछ हो रही है। हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, अच्छा सब आपके साथ भी हैं। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और सीनियर रहनुमा मुबशर इकबाल जावेद साहब अभी मुलाकात की है, मुबशर साहब जावेद साहब ने मुलाकात की है अभी डिप्टी कमिश्नर साहब से और मसाइल हल करवाए। इनका कहना है कि हम तारिक बशीर चीमा साहब के वीएन पे काम कर रहे हैं, उनका ग्रुप पूरे का पूरा इस वक्त चैम्बर में मुतहर्रिक है, और हम लोग अब पाकिस्तान कॉटन यूनियन के हवाले से भी जो पीसीजे है उसमें भी इंशाअल्लाह ताला नुमाया पोजीशनें लेंगे। हमारी खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा, यही हमारा काम है। आवाम की खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से एक्साइज ऑफिस में कोरोना के हवाले से स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की दरखास्त देने का मामला, इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं बिलाल नियाजी। एक्साइज ऑफिस के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता रोज महकमे सेहत की जानिब से एक मरासला सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि मुल्तान एक्साइज ऑफिस में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए, जिस पर आज इस हवाले से जो ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ मुलाजमीन की सैंपलिंग भी की गई है कोरोना के टेस्ट के हवाले से। उसके साथ साथ जो डायरेक्टर एक्साइज हमारे से इस हवाले से मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि एसओपी इस पर किस तरह अमल दरामद किया जा रहा है और इस हवाले से वो क्या कहेंगे। सर बताइएगा, कोरोना के हवाले से अब तक क्या इकदाम किए गए हैं, और एक मरासला भी सामने आया था कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो वाकई यहाँ पे कोई ऐसे केसेस हैं? जी, इस तरह है कि किसी शख्स ने गुमनाम दरख्वास्त दी है हेल्थ डिपार्टमेंट को और डिप्टी कमिश्नर साहब को कि जी चंद एहलकार, उनका नाम उसमें उसने दरख्वास्त में लिखा है कि जी इनका कोरोना टेस्ट कराया जाए, जबकि उन एहलकारों को कोरोना की कोई अलामात नहीं है। और हमारा दफ्तर अवाम की सहूलत के लिए जो है 15 जुलाई से बाकायदगी से काम कर रहे हैं, काबीना कमेटी की मीटिंग की मंजूरी के बाद और सेक्रेटरी हेल्थ के नोटिफिकेशन के तहत हमारा ऑफिस काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम मुकम्मल एसओपीज़ पर अमल दरामद कर रहे हैं और आवाम की सहूलत के लिए हमने ई पे सिस्टम मुतारफ़ कराया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए और घर बैठ के मोटर टैक्स पे 25% रियायत और प्रॉपर्टी टैक्स पे ई पे के ज़रिए 20% रियायत हम दे रहे हैं 30 सितंबर तक। तो हमारी कोशिश ये है कि इस रश को यहाँ पे कम से कम किया जाए और लोगों को यह जहमत न दी जाए कि वो हमारे दफातर में है, लेकिन जहाँ दफातर में हमारे काउंटर काम कर रहे हैं वहाँ पे सैनिटाइज़र, मास्क और तमाम जो एसओपीज़ हैं उन सब पे हम अमल दरामद कर रहे हैं और सेहत और सफाई का मुकम्मल इंतज़ाम है। और यहाँ पे किसी भी शख्स को या किसी भी एहलकार को किसी तरह की कोई अलामत लाहक नहीं है। आवाम की सहूलत के लिए ई पे सिस्टम मुतारिफ करवाया है। बहुत शुक्रिया बिलाल नियाजी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त रखना। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वबाई अमराज के कंट्रोल के लिए कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर का अहम इकदाम। कोरोना वायरस समेत दीगर वबाई अमराज के कंट्रोल के लिए कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर ने पंजाब हुकूमत से 65 बेड पर मुश्तमिल इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल यूनिट के कयाम की दरख्वास्त कर दी है।
आपको बता रहे हैं वबाई अमराज के कंट्रोल के लिए कायद आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर का अहम कदम सामने आया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अथल आशारी। हमारे समेत दीगर जो वबाई अमराज हैं उनके कंट्रोल और इलाज के हवाले से कायद आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में एक अहम कदम जो है वो उठाया गया है और एक नए यूनिट की जो है वो बात की गई है कि एक नया यूनिट जो है वो यहाँ पर कायम हो। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं तर्जुमान कायद आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर डॉक्टर तलहा चीमा साहब। सर फरमाइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बहुत शुक्रिया शारी साहब। गुजारिश ये है कि हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। अभी आपने भी देखा होगा कि एमरजेंसी के अंदर एक पेशेंट रिपोर्ट होता था, वो फिर फ्लू क्लिनिक जाता था, वहाँ से फिर वो फिल्टर आउट होकर फिर सिविल हॉस्पिटल जाता था, जिसकी वजह से किसी भी वबाई मर्ज के लाइक कोविड जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है उसके फैलने का अंदेशा मज़ीद बढ़ जाता था। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, हमारा वो 410 बिस्तरों पे मुश्तमिल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, उसके जितने बेड्स हमने कोविड के लिए दिए हुए हैं वो अबाउट 110 के करीब हैं जो इस वक्त यूज़ में आ रहे हैं। बाकी 300 बेड्स जो हैं दे आर वेकेंट और वहाँ पे हमारे तमाम शोबाजात जो हैं वो इस्टेब्लिश्ड हैं लाइक रेडियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, सर्जरी, उन तमाम के तमाम का काम जो है वो बंद है पिछले 4-5 महीने से। अब गुजारिश ये है कि जब हमारे अपने अवाम जो हैं, हमारे मरीज़ जो हैं, वो जब वहाँ पे जाते हैं तो उनको वो सहूलत नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो फिर यहाँ पे ओवरबर्डन हो रहा है BVH। तो इसके ऊपर एक इंतहाई अहम कदम जो है वो प्रिंसिपल साहब ने सोचा और इसको हमने भी फिर आगे इस पर अमली जमा पहनाने की कोशिश की है उनकी गाइडेंस के अंडर कि हमने एक 60 बेडेड का एक सेपरेट जो है वो इन्फेक्शियस कंट्रोल डिजीज़ यूनिट जो है ना वो मांगा है गवर्नमेंट से विद द फैसिलिटी ऑफ टेलीमेडिसिन, कि उसके अंदर वो टेलीमेडिसिन की भी फैसिलिटी देंगे और उसके ऊपर हम बाकायदा जो है उसका कंसेप्ट फॉर्म, कंसेप्ट पेपर बना के उसका एक तखमीना लगा के, ये नहीं कि सिर्फ हमने एक लेटर लिखा है, हमने एक बाकायदा उसका तखमीना लगा के कंसेप्ट पेपर पूरा एक जो PND का होता है वो बना के हमने जो है वो गवर्नमेंट को अरसाल किया ताकि हमें जो है इस ADP के अंदर अगर प्रोविजन मिल जाए दैट विल बी अ मच हेल्प हमारे जो है भावलपुर के रेजिडेंट्स के लिए। बिल्कुल ऐसे जी, भावलपुर के रेजिडेंट्स के लिए, मरीजों के लिए इस इक़दाम से वबाई अमराज के कंट्रोल में आसानी होगी। अथल आशारी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं बहावलपुर में चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर चौधरी जावेद इकबाल और सीनियर नायब रहनुमा चेंबर ऑफ कॉमर्स मुबशर जावेद ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के दोनों सीनियर रहनुमाओं ने डिप्टी कमिश्नर से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मसाइल हल करने पर गुफ्तगू की है। इस पर मजीद तफसीलात बताएंगे महमूद जहीर। महमूद बताएगा। मैं मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, जहां पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक वफद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मसाइल के हवाले से डिप्टी कमिश्नर साहब को अभी मिले हैं। तो सदर हैं हमारे साथ चौधरी जावेद इकबाल साहब। सर आपने वो खबर कल हमें दी भी थी, हमारे चैनल पे चलती भी रही है कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के कुछ लोगों को कोटा नहीं दिया गया, बाकी सब लोगों को मिल रहा है। उसके लिए आपने कहा कि हम सबके साथ चलेंगे और इनका भी कोटा मंजूर करवा कर देंगे। तो क्या आज बना, आपकी मीटिंग हुई डिप्टी कमिश्नर? जी जी, बहुत मेहरबानी। आज हम आए हैं DC साहब के पास, जो हमारे इश्यूज थे वो हमने इनके साथ डिस्कस किए हैं। उन्होंने कमाल मेहरबानी करते हुए, चूंकि हमारे ये जेन्युइन इशू थे, सिर्फ 6 मिलें ऐसी थी जिनको कोटा नहीं मिला और 31 को कोटा मिल चुका था। उन्होंने केस देखा, चूंकि हमारा केस जेन्युइन था, उन्होंने फौरी तौर पे आर्डर कर दिए हैं तमाम मिलों को बहावलपुर की कोटा मिलेगा और बहावलपुर में आटे की जो सप्लाई का इशू है वो बिल्कुल नहीं होगा और इंशाल्लाह गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा निर्खों पर आटा वाफर मकदार में बहावलपुर में अवेलेबल होगा। तो तारिक बशीर चीमा साहब के राइट हैंड है मुबशर जावेद साहब, मोहर इधर से इधर हिलाते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बड़े सीनियर लीडर हैं। आप आज बड़े अरसे बाद नजर आए मुबशर साहब, एक तो आपका शुक्रिया, आप हमें टाइम दे रहे हैं। दूसरा, तारिक बशीर चीमा साहब हों, आप हों, जावेद इकबाल साहब हो, आप लोगों की एक ही कोशिश होती है कि जो आम मसाइल हैं, ताजरों के हों, इंडस्ट्री के लोगों के हों, वो हल हों। तो इसके लिए क्या इज़हार ख्याल कर रहे हैं? भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तारिक बशीर चीमा साहब की क़यादत में हमेशा चीमा साहब की इंस्ट्रक्शन पे हमने तमाम ताजरों के छोटे बड़े ताजे मसाइल हल किए हैं। आज भी हम इस सिलसिले में यहाँ पे आए थे, पिछले 5-6 दिन से वर्किंग चल रही थी, तो BD साहब ने मेहरबानी की है, हम जाकर मिले हैं। खैर उनको हमारा सैल्यूट है कि उन्होंने हमसे कोई बात की है बगैर फौरी हमारा कोटा उन्होंने अलाट कर दिया है। तो बाकी मशहूर डी साहब के भी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के भी, आप मीडिया वालों के भी, कि आप लोग हमारे साथ छाना बेछाना खड़े होते हैं। ये बेचारे सारे हमारे दोस्त परेशान थे, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, डी साहब ने मेहरबानी की, हमारा काम आज हो गया। अच्छा, कोरोना की मसरूफियत के बावजूद आप लोगों ने चैम्बर की एक्टिविटीज को भी जारी रखा और चैम्बर के मसाइल के और खासतौर पर ताजरों के मसाइल के लिए कोशा भी है। तो ये क्या खास इंस्ट्रक्शन है आपको तारिक बशीर चीमा साहब से, या आप खुद ये विलिंगली कर? सर ये चीमा साहब का स्टाइल है और चीमा साहब हमारे लीडर हैं। उनकी जो इंस्ट्रक्शन हो बेशक ना, उनका विजन यही है कि खिदमत करनी है आवाम की। वो खिदमत हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। बेशक कोरोना भी था लेकिन मीडिया पे नहीं आए हैं, लेकिन अंदर खाने जो हमारी मीटिंग चाहिए थी, लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, भावलपुर, मुल्तान, हम ऑलरेडी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस दफा भी पूरी खिदमत की है और खिदमत का रिजल्ट हमें चैम्बर के इलेक्शन
इलेक्शन में मिलेगा। और इसके साथ साथ को मैं और बात भी बता दूं, इस दफा हम पीसीजे के अंदर भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कॉटन जिन एसोसिएशन में भी अपना पूरा रोल अदा करेंगे। और जैसे कि पहले भी हमने चीमा साहब की क़यादत में 5% सेल टैक्स का इशू था, तकरीबन 6.5-7 अरब सालाना बनता है, जो कि जिन हज़रात पे लगाया गया था। उसका मामला चीमा साहब ने बड़े बेहतरीन तरीके के साथ असेंबली से उसको फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट करवाई है। और वो जो पिछले सालों का टैक्स है, जो फ्यूचर का टैक्स है, वो सारा खत्म हो गया। इंशाअल्लाह ताला इस पीसीजे के मामले भी हम इलेक्शन के हवाले से तब ठीक ठाक आपको नजर आएगा कि वर्किंग कुछ हो रही है। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, चौधरी साहब आपके साथ भी हैं। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और सीनियर रहनुमा मुबशर इकबाल जावेद साहब अभी मुलाकात की है, मुबशर साहब जावेद साहब ने मुलाकात की है अभी डिप्टी कमिश्नर साहब से और मसाइल हल करवाए। इनका कहना है कि हम तारिक बशीर चीमा साहब के वीएन पे काम कर रहे हैं, उनका ग्रुप पूरे का पूरा इस वक्त चैम्बर में मुतहर्रिक है। और हम लोग अब पाकिस्तान कॉटन यूनियन के हवाले से भी जो पीसीजे है उसमें भी इंशाअल्लाह ताला नुमाया पोजीशनें लेंगे। हमारी खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा, यही हमारा काम है। आवाम की खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से एक्साइज ऑफिस में कोरोना के हवाले से स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की दरखास्त देने का मामला, इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं बिलाल नियाजी। एक्साइज ऑफिस के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता रोज महकमे सेहत की जानिब से एक मरासला सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि मुल्तान एक्साइज ऑफिस में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए, जिस पर आज इस हवाले से जो ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ मुलाजमीन की सैंपलिंग भी की गई है कोरोना के टेस्ट के हवाले से। उसके साथ साथ जो डायरेक्टर एक्साइज हमारे से इस हवाले से मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि एसओपी पर किस तरह अमल दरामद किया जा रहा है और इस हवाले से वो क्या कहेंगे। सर बताइएगा, कोरोना के हवाले से अब तक क्या इकदाम किए गए हैं और एक मरासला भी सामने आया था कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो वाकई यहाँ पे कोई ऐसे केसेस हैं? जी, इस तरह है कि किसी शख्स ने गुमनाम दरख्वास्त दी है हेल्थ डिपार्टमेंट को और डिप्टी कमिश्नर साहब को कि जी चंद एहलकार, उनका नाम उसमें उसने दरख्वास्त में लिखा है कि जी इनका कोरोना टेस्ट कराया जाए, जबकि उन एहलकारों को कोरोना की कोई अलामात नहीं है। और हमारा दफ्तर अवाम की सहूलत के लिए जो है 15 जुलाई से बाकायदगी से काम कर रहे हैं। काबीना कमेटी की मीटिंग की मंजूरी के बाद और सेक्रेटरी हेल्थ के नोटिफिकेशन के तहत हमारा ऑफिस काम कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरह हम मुकम्मल एसओपीज़ पर अमल दरामद कर रहे हैं और आवाम की सहूलत के लिए हमने ई पे सिस्टम मुतारफ़ कराया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए और घर बैठ के मोटर टैक्स पे 25% रियायत और प्रॉपर्टी टैक्स पे ई पे के ज़रिए 20% रियायत हम दे रहे हैं 30 सितंबर तक। तो हमारी कोशिश ये है कि इस रश को यहाँ पे कम से कम किया जाए और लोगों को यह जहमत न दी जाए कि वो हमारे दफातर में आए। लेकिन जहाँ दफातर में हमारे काउंटर काम कर रहे हैं वहाँ पे सैनिटाइज़र, मास्क और तमाम जो एसओपीज़ हैं उन सब पे हम अमल दरामद कर रहे हैं और सेहत और सफाई का मुकम्मल इंतज़ाम है। और यहाँ पे किसी भी शख्स को या किसी भी एहलकार को किसी तरह की कोई अलामत लाक नहीं है। आवाम की सहूलत के लिए ई पे सिस्टम मुतारिफ करवाया है। बहुत शुक्रिया बिलाल नियाजी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त रखना। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वबाई अमराज के कंट्रोल के लिए कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर का अहम इकदाम। कोरोना वायरस समेत दीगर वबाई अमराज के कंट्रोल के लिए कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर ने पंजाब हुकूमत से 65 बेड पर मुश्तमिल इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल यूनिट के कयाम की दरख्वास्त कर दी है। आपको बता रहे हैं, वबाई अमराज के कंट्रोल के लिए कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर का अहम कदम सामने आया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अथल आशारी। हमारे समेत दीगर जो वबाई अमराज हैं उनके कंट्रोल और इलाज के हवाले से कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में एक अहम कदम जो है वो उठाया गया है और एक नए यूनिट की जो है वो बात की गई है कि एक नया यूनिट जो है वो यहाँ पर कायम हो। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं तर्जुमान कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर डॉक्टर तलहा चीमा साहब। सर फरमाइएगा, क्या डिटेल्स हैं? जी बहुत शुक्रिया अशारी साहब। गुजारिश ये है कि हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। अभी आपने भी देखा होगा कि एमरजेंसी के अंदर एक पेशेंट रिपोर्ट होता था, वो फिर फ्लू क्लिनिक जाता था, वहाँ से फिर वो फिल्टर आउट होकर फिर सिविल हॉस्पिटल जाता था, जिसकी वजह से किसी भी वबाई मर्ज के लाइक कोविड जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है उसके फैलने का अंदेशा मज़ीद बढ़ जाता था। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, हमारा वो 410 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, उसके जितने बेड्स हमने कोविड के लिए दिए हुए हैं वो अबाउट 110 के करीब हैं जिस वक्त यूज़ में आ रहे हैं। बाकी 300 बेड्स जो हैं दे आर वेकेंट और वहाँ पे हमारे तमाम शोबाजात जो हैं वो इस्टेब्लिश्ड हैं, लाइक रेडियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, सर्जरी, उन तमाम के तमाम का काम जो है वो बंद है पिछले 4-5 महीने से। अब गुजारिश ये है कि जब हमारे अपने अवाम जो हैं, हमारे मरीज़ जो हैं, वो जब वहाँ पे जाते हैं तो उनको वो सहूलत नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो फिर यहाँ पे ओवरबर्डन हो रहा है BVH।
तो इसके ऊपर एक इंतहाई अहम कदम जो है वो प्रिंसिपल साहब ने सोचा और इसको हमने भी फिर आगे इस पे अमली जामा पहनाने की कोशिश की है उनकी गाइडेंस के अंडर कि हमने एक 60 बेडेड का एक सेपरेट जो है वो इन्फेक्शियस कंट्रोल डिजीज यूनिट जो है ना वो मांगा है गवर्नमेंट से विद द फैसिलिटी ऑफ टेलीमेडिसिन कि उसके अंदर वो टेलीमेडिसिन की भी फैसिलिटी देंगे और उसके ऊपर हम बाकायदा जो है उसका कंसेप्ट फॉर्म कंसेप्ट पेपर बना के उसका एक तखमीना लगा के ये नहीं कि सिर्फ हमने एक लेटर लिखा है हमने एक बाकायदा उसका तखमीना लगा के कंसेप्ट पेपर पूरा एक जो PND का होता है वो बना के हमने जो है वो गवर्नमेंट को अरसाल किया ताकि हमें जो है इस ADP के अंदर अगर प्रोविजन मिल जाए दैट विल बी अ मच हेल्प हमारे जो है भावलपुर के रेजिडेंट्स के लिए। बिल्कुल ऐसे जी, भावलपुर के रेजिडेंट्स के लिए, मरीजों के लिए इस इक़दाम से वबाई अमराज के कंट्रोल में आसानी हो गया। थरलाशारी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं बहावलपुर में चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर चौधरी जावेद इकबाल और सीनियर नायब रहनुमा चेंबर ऑफ कॉमर्स मुबशर जावेद ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के दोनों सीनियर रहनुमाओं ने डिप्टी कमिश्नर से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मसाइल हल करने पर गुफ्तगू की है। इस पर मजीद तफसीलात बताएंगे महमूद जहीर। महमूद बताएगा। मैं मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक वफद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मसाइल के हवाले से डिप्टी कमिश्नर साहब को अभी मिले हैं। तो सदर हैं हमारे साथ चौधरी जावेद इकबाल साहब। सर, आपने वो खबर कल हमें दी भी थी, हमारे चैनल पे चलती भी रही है कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के कुछ लोगों को कोटा नहीं दिया गया, बाकी सब लोगों को मिल रहा है। उसके लिए आपने कहा कि हम सबके साथ चलेंगे और इनका भी कोटा मंजूर करवा कर देंगे। तो क्या आज बना, आपकी मीटिंग हुई डिप्टी कमिश्नर? जी जी, बहुत मेहरबानी। आज हम आए हैं DC साहब के पास, जो हमारे इश्यूज थे वो हमने इनके साथ डिस्कस किए हैं। उन्होंने कमाल मेहरबानी करते हुए, चूंकि हमारे ये जेन्युइन इशू थे, सिर्फ 6 मिलें ऐसी थी जिनको कोटा नहीं मिला और 31 को कोटा मिल चुका था। उन्होंने केस देखा, चूंकि हमारा केस जेन्युइन था, उन्होंने फौरी तौर पे आर्डर कर दिए हैं तमाम मिलों को बहावलपुर की कोटा मिलेगा और बहावलपुर में आटे की जो सप्लाई का इशू है वो बिल्कुल नहीं होगा और इंशाल्लाह गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा निर्खों पर आटा वाफर मकदार में बहावलपुर में अवेलेबल होगा। तो तारिक बशीर चीमा साहब के राइट हैंड है मुबशर जावेद साहब, मोहर इधर से इधर हिलाते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बड़े सीनियर लीडर हैं। आप आज बड़े अरसे बाद नजर आए मुबशर साहब, एक तो आपका शुक्रिया, आप हमें टाइम दे रहे हैं। दूसरा, तारिक बशीर चीमा साहब हों, आप हों, जावेद इकबाल साहब हो, आप लोगों की एक ही कोशिश होती है कि जो आम मसाइल हैं, ताजरों के हों, इंडस्ट्री के लोगों के हों, वो हल हों। तो इसके लिए क्या इज़हार ख्याल कर रहे हैं? भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम तारिक बशीर चीमा साहब की क़यादत में हमेशा चीमा साहब की इंस्ट्रक्शन पे हमने तमाम ताजरों के छोटे बड़े ताजे मसाइल हल किए हैं। आज भी हम इस सिलसिले में यहाँ पे आए थे, पिछले 5-6 दिन से वर्किंग चल रही थी। तो BD साहब ने मेहरबानी की है, हम जाकर मिले हैं। खैर उनको हमारा सैल्यूट है कि उन्होंने हमसे कोई बात की है बगैर फौरी हमारा कोटा उन्होंने अलाट कर दिया है। तो बाकी मशहूर DC साहब के भी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के भी, आप मीडिया वालों के भी कि आप लोग हमारे साथ छाना में छाना खड़े होते हैं। ये बेचारे सारे हमारे दोस्त परेशान थे, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, DC साहब ने मेहरबानी की, हमारा काम आज हो गया। अच्छा, कोरोना की मसरूफियत के बावजूद आप लोगों ने चैम्बर की एक्टिविटीज को भी जारी रखा और चैम्बर के मसाइल के और खासतौर पर ताजरों के मसाइल के लिए कोशिश भी है। तो ये क्या खास इंस्ट्रक्शन है आपको तारिक बशीर चीमा साहब से, या आप खुद ये विलिंगली कर? सर, ये चीमा साहब का स्टाइल है और चीमा साहब हमारे लीडर हैं। उनकी जो इंस्ट्रक्शन हो, बेशक ना, उनका विजन यही है कि खिदमत करनी है आवाम की। वो खिदमत हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। बेशक कोरोना भी था लेकिन मीडिया पे नहीं आए हैं, लेकिन अंदर खाने जो हमारी मीटिंग चाहिए थी, लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, भावलपुर, मुल्तान, हम ऑलरेडी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस दफा भी पूरी खिदमत की है और खिदमत का रिजल्ट हमें चैम्बर के इलेक्शन में मिलेगा। और इसके साथ साथ को मैं और बात भी बता दूं, इस दफा हम PCJ के अंदर भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कॉटन जिनरल एसोसिएशन में भी अपना पूरा रोल अदा करेंगे। और जैसे कि पहले भी हमने चीमा साहब की क़यादत में 5% सेल टैक्स का इशू था, तकरीबन 6.5-7 अरब सालाना बनता है, जो कि जिनरल हज़रात पे लगाया गया था। उसका मामला चीमा साहब ने बड़े बेहतरीन तरीके के साथ असेंबली से उसको फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट करवाई है और वो जो पिछले सालों का टैक्स है, जो फ्यूचर का टैक्स है, वो सारा खत्म हो गया। इंशाअल्लाह ताला इस PCJ के मामले भी हम इलेक्शन के हवाले से तब ठीक ठाक आपको नजर आएगा कि वर्किंग भी हो रही है। हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। अच्छा, सब आपके साथ भी हैं। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और सीनियर रहनुमा मुबशर इकबाल जावेद साहब अभी मुलाकात की है, मुबशर साहब जावेद साहब ने मुलाकात की है अभी डिप्टी कमिश्नर साहब से और मसाइल हल करवाए। इनका कहना है कि हम तारिक बशीर चीमा साहब के VN पे काम कर रहे हैं, उनका ग्रुप पूरे का पूरा इस वक्त चैम्बर में मुतहर्रिक है और हम लोग अब पाकिस्तान कॉटन यूनियन के हवाले से भी जो PCJ है उसमें भी इंशाअल्लाह ताला नुमाया पोजीशनें लेंगे। हमारी खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा, यही हमारा काम है। आवाम की खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से एक्साइज ऑफिस में कोरोना के हवाले से स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की दरखास्त देने का मामला, इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं बिलाल नियाजी।
एक्साइज ऑफिस के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता रोज महकमे सेहत की जानिब से एक मरासला सामने आया था जिसमें कहा गया था कि मुल्तान एक्साइज ऑफिस में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए, जिस पर आज इस हवाले से जो ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ मुलाजमीन की सैंपलिंग भी की गई है कोरोना के टेस्ट के हवाले से। उसके साथ साथ जो डायरेक्टर एक्साइज हमारे से इस हवाले से मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि SOPs पर किस तरह अमल दरामद किया जा रहा है और इस हवाले से वो क्या कहेंगे। सर बताइएगा, कोरोना के हवाले से अब तक क्या इकदाम किए गए हैं और एक मरासला भी सामने आया था कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो वाकई यहाँ पे कोई ऐसे केसेस हैं? जी, इस तरह है कि किसी शख्स ने गुमनाम दरख्वास्त दी है हेल्थ डिपार्टमेंट को और डिप्टी कमिश्नर साहब को कि जी चंद एहलकार, उनका नाम उसमें उसने दरख्वास्त में लिखा है कि जी इनका कोरोना टेस्ट कराया जाए, जबकि उन एहलकारों को कोरोना की कोई अलामात नहीं है। और हमारा दफ्तर अवाम की सहूलत के लिए जो है 15 जुलाई से बाकायदगी से काम कर रहे हैं, काबीना कमेटी की मीटिंग की मंजूरी के बाद और सेक्रेटरी हेल्थ के नोटिफिकेशन के तहत हमारा ऑफिस काम कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरह हम मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं और आवाम की सहूलत के लिए हमने E-पे सिस्टम मुतारफ़ कराया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए और घर बैठ के मोटर टैक्स पे 25% रियायत और प्रॉपर्टी टैक्स पे E-पे के ज़रिए 20% रियायत हम दे रहे हैं 30 सितंबर तक। तो हमारी कोशिश ये है कि इस रश को यहाँ पे कम से कम किया जाए और लोगों को यह जहमत न दी जाए कि वो हमारे दफातर में आए, लेकिन जहाँ दफातर में हमारे काउंटर काम कर रहे हैं वहाँ पे सैनिटाइज़र, मास्क और तमाम जो SOPs हैं उन सब पे हम अमल दरामद कर रहे हैं और सेहत और सफाई का मुकम्मल इंतज़ाम है और यहाँ पे किसी भी शख्स को या किसी भी एहलकार को किसी तरह की कोई अलामत लाक नहीं है। आवाम की सहूलत के लिए E-पे सिस्टम मुतारिफ करवाया है। बहुत शुक्रिया बिलाल न्याजी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त रखना।